Hey, hello guys. I hope you guys are all doing well. And I thought of making a videos on, as I was preparing for IELTS, and I was going through writing tasks too, and I've jotted down, some vocabs which may be useful for you as well as me, as I'm preparing nowadays for it only. So yeah, I'll just go through certain vocabs. Maybe it's going to help you in your exam. So yeah, I'll just make it simple. I'll just make a video out of it and try and meanings are already written to all the words over there, but still I'll go through all the words so that it can be helpful for you, and you can actually write it down in your copy or somewhere, you know wherever you want, right? So let's begin it. Yeah, so first, you can see this responsible, which means liable, and then there is activities, which goes for pursuit, and then difficult, we all know it's trivial, same, it's identical, alike, support is like bolster, ये हम लोग economy के लिए डालते हैं कि it will bolster the economic condition. And then hectic, which is like restless. And then we can go for boring. Boring is tedious, yeah, tiresome. And then inadequate, scanty, deficient. And then there is enable. Enable, like obviously it's make easier. Analyze, evaluate. And then edifices, we use it for government buildings वगैरह, like modern edifices वगैरह वगैरह इसके लिए. Incessant is like continuing without interruption. People, we can replace this word with community, individual, society. And then children, we can replace it with adolescents, teenagers, youngsters. And when we talk about above 18, we can replace it with grown-ups, which is not over here. I just have said you, if you can write it down. And then there's unite, which is integrate, unify. Inherent property, which is your inside property, which can be replaced by innate. Peer pressure, which जो हम लोगों को देखकर खुद करने का जो मन नहीं करता, तो वही है peer pressure. फिर curious, this goes by inquisitive, syllabus, curriculum. Resilient and hard work people, like उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो इसको. And then consequence, like as a result, subsequently, ये सब चीज़ें पता ही होंगी आप लोगों को, अगर लगे तो लिख लेना. फिर well being, it's like well being, welfare, जब हम लोग देते it's helpful for the well being of our country, well being of our family and everything. Prolonging work, जो ज़्यादा हम लोग काम करते हैं आजकल वो आती रहती है एसेस कि ज़्यादा काम करने का क्या प्रॉब्लम है, तो पीपल आर वर्किंग, पीपल्स लाइफ्स आर गेटिंग स्ट्रेसफुल. सो या प्रोलॉन्गिंग वर्क से हम लोग उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं या उस ऐसे में डाल सकते हैं. एंड देन इट कम्स परस्यू, एंड देन अंडरटेक. वर्क फोर्स हम लोग एम्प्लॉय से रिप्लेस कर सकते हैं, वो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है. एंड देन अगेन अपब्रिंगिंग, रेजिंग, एलिगेशन, प्रोक्लेमेशन. And then significant is, yeah, notable. Fascinated, we all know it's attractive, we're getting fascinated. Fascinating, you can also use this like that, yeah. So again, these all words are very useful actually, because मैंने ये कहाँ से लिया नहीं है, ये मैंने बस अपने एसेस पढ़ते पढ़ते निकाला. तुमको हर एक वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने एसेस पे. वल्नरेबल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. लेजर एक्टिविटीज़. ओवरली एक्सपोज्ड, अभी ओवरली एक्सपोज्ड हम कहाँ डाल सकते हैं? ओवरली एक्सपोज लाइक जो इंटरनेट है अभी के ज़माने में, जो बच्चे टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो कि थिंग्स आर लाइक ओवरली एक्सपोज्ड नाउ डेज, जो कि विच कैन हैव डिट्रेटिमेंटल, कैटास्ट्रोफिक, कुछ भी डाल दो इफेक्ट ऑन देम. एंड देन प्रोलिफरेशन मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ ड्रग्स होती है बेसिकली. कहीं भी अगर ड्रग्स से रिलेटेड कुछ है तो आप डाल सकते हो प्रोलिफरेशन ऑफ ड्रग्स. एंड देन देयर इज इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूट, अप्लाई. हाउस हेल्प कोर्स, हाउस जो हम लोग घर के काम. पीयर प्रेशर अगेन आ गया, पता नहीं कहाँ से, 2 बार ही डाल दिया मैंने शायद. एंड देन लेस टीडियस, दिस इज अगेन टायरसम, मोनोटोनस. एग्जाम्प्लीफाइड, या यू कैन गिव इट, हम लोगों को एग्जाम्पल देने होते हैं 2 बॉडी पैराग्राफ्स में 2 बार, तो हम एग्जाम्प्लीफाइड डाल सकते हैं. इक्वल फूटिंग, अगेन कंक्लूजन जब लिखते हैं तो हम लोग ये भी वो भी दोनों व्यूज़ लिखने के बाद हम लोग ये वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि इक्वल फूटिंग. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ लाइक जो टीचरों वाला आता है ना, ऐसे मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं उनका क्या महत्व है इन और मतलब जो हम लोग इंटरनेट से भी तो पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इंस्टिल बाय इनकलकेट करते हैं हमारे टीचर,
वो बहुत डेवलप हो जाते हैं बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उस तरीके से आप डाल सकते हो। और दूसरी और एक वर्ड है दैट इज़ चाइल्ड एक्विजिशन, देन अगेन यू कैन राइट फॉर्चुनेट इनफ, लाइक भाग्यवान, जैसे मैंने हिंदी पे लिखा हुआ वहाँ पे मेरे को मिला नहीं उसका कुछ वर्ड, ऐसे लिख दिया मैंने। हिडन पिटफॉल्स, या जैसे कि हम लोग जब एट डिसएडवांटेज लिखते हैं तब डाल सकते हैं हिडन पिटफॉल्स, यू नो। फिर आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट इज़ लाइक जो टीचर जो भी है, मतलब यू नो कोई अगर प्रोनाउंस करते हैं ठीक से, शी वॉज वेरी आर्टिकुलेट विथ हर प्रेजेंटेशन, इन दिस वे यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड। हिंडर आपको पता ही होगा, ऑब्स्ट्रक्ट या इंटरप्ट, ठीक है। टीचर्स को बार बार आती है तो मेंटर्स, ट्यूटर्स, इंस्ट्रक्टर्स, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशंस, ये सब वर्ड्स बहुत इजी शायद आपको लग रही हैं जैसे कि गवर्नमेंट, लेकिन इसका जो है यू नो ब्यूरोक्रेट्स, हम लोग को हमेशा शायद आता नहीं है दिमाग में, तो ज़्यादा हार्ड वर्ड लिख के बहुत फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज वो सब ऐसे भी दिमाग में आने नहीं वाला है। जो सब वर्ड हम लोग एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि क्रिएट, फॉर्ज फ्रेंडशिप, फॉर्ज बॉन्डिंग, यू नो दिस इज़ द थिंग। गिव हम लोग बार बार यूज़ करते हैं तो उस टाइम हमको पता नहीं। बेस्टोड विद द प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, यू नो। सो या बेस्टोड, प्लेथोरा इज़ लाइक मतलब एबंडेंस, बहुत ज़्यादा, लाइक वी हैव बीन बेस्टोड विद द प्लेथोरा ऑफ XYZ things, you know, like this. Start, commence, embark, freedom, पता ही है, artist, youngsters हम लोग लिख सकते हैं with adolescents, juveniles, offsprings. अगेन adults को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं with grown ups. Then comes country. Country can be replaced by nation, and then many, a host of, myriad of, abundant, plethora again आ गया. Traveling is like commuting. Difficulty, अब ट्रिबुलेशन, डिफ़िकल्ट मतलब ट्राइवल, तो वहाँ से ट्रिबुलेशन आ गया। एंड देन इन्वॉल्व इज़ लाइक इंडल्ज। फिर पुअर, पुअर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, या इसको आप चेंज कर सकते हो डेस्टिट्यूट्स। फिर इम्पोविश्ड, पॉवर्टी स्ट्रिकन, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड वगैरह वगैरह से। टूरिस्ट आप चेंज कर दो, टूरिस्ट से बहुत ज़्यादा ऐसे आती हैं, यू नो, साइट सीज, विजिटर्स। मैं कोई बॉस 5,000 या वैसे 7 या 6 वर्ड नहीं देने वाला जिससे इन्हेंस कर जाएगी आपकी 6.5 से 9.5 हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये सब वर्ड्स एक्चुअली यूज़फुल हैं, ठीक है। यूज़लेस, लाइक हिस्ट्री इज़ यूज़लेस, मतलब हिस्ट्री से हम लोग ने बहुत ऐसे जो लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली उनको पता है हिस्ट्री इज़ यूज़फुल और नॉट, साइंस कैसे उसको ओवरटेक कर रहा है, तो या वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूटाइल या रिडंडेंट वगैरह। फिर देन हेल्प, एनेबल, एड, असिस्ट। हार्मफुल इज़ लाइक व्हाट आई हैव सेड, डेट्रीमेंटल, कैटास्ट्रोफिक, सोसाइटीज़, कम्युनिटी। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, रिमेडियल मेजर्स आपको पता ही होंगे, देख लेना। इम्प्रूव इज़ लाइक एमेलियोरेट। नाउ we have to make worse. Yeah, this is not exaggerate, this is exacerbate, right? स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना भाई, मेरे को भी पढ़ना है, ठीक है। तो या सम इज़ लाइक सर्टेन, व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स, लाइकिंग, फॉन्डनेस, लाइक इज़ लाइक एडमायर, चेरिश, अडोर, एन्जॉय, एन्जॉय तो ईजी है। एनिमल्स अगर आ गया तो फ्लोरा फोना डाल देना। स्टूडेंट्स, पीपल्स एंड लर्नर्स, और कोई वर्ड मिला नहीं, अगर आपको मिलता है तो कमेंट में डालना, ठीक है। बिहेवियर इज़ लाइक कंडक्ट और कंपलसरी, टॉलरेट, ये सब इजी हैं। या मॉडर्न, मॉडर्न इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, कंटेम्प्रेरी एरा, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा फलाना फलाना हो रहा है। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, सफिशिएंट, एडुकेट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। टेक द हेल्प ऑफ, टेक द रिसोर्स ऑफ, राइट। रिगरस इज़ लाइक स्ट्रिंजेंट, हार्ड, स्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। स्ट्राइव टू, लाइक स्टूडेंट ट्राइव टू अटेन गुड मार्क्स, पीपल स्ट्राइव टू डू सच एंड सच थिंग्स वगैरह। एंडेवियर आपको पता ही है, ठीक है। जियोपर्डाइज इज़ लाइक थ्रेटन्स, जब भी हम लोग डालते हैं कुछ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो लोग ऐसे पढ़ रहे हैं उनको पता है। पेरिल इज़ लाइक डेंजर, पेरिलस इज़ लाइक डेंजरस। यूजलेस, फ्यूटाइल, ठीक है। ये फ्यूटाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने तो बहुत बार ही देखा है हर एक हिस्से में, आइल्स मेंटर से पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो या वहाँ पे है ये वर्ड बहुत बारी। कैटर, लाइक हम लोग पता ही है केटरिंग, तो मैंने जस्ट रियलाइज़ करा तो ये शायद सर्विंग्स को ही केटरिंग कहते हैं, अब उतना तो मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पे केटर एंड सर्व तो वहाँ से मैच कर रहा है। इंटरप्ट इज़ लाइक हिंडर, हम लोग पहले बताया। एक्सप्लॉयट मतलब हार्नेस। इग्नोर इज़ लाइक ओवरली, ओवरलुक। रेसिडेंट्स, हाँ इंपॉर्टेंट है। इनहेबिटेंट्स, ड्वेलर्स, ये तो आपकी राइटिंग टास्क 1 में भी आ जाएगी। इंक्लूड, फाइन। देन अनडिनाइबल, इट्स इररिफ्यूजेबल। रिड्यूस, मिटिगेट, अरे बाप रे बाप, ये तो कहीं भी डाल दो आप। मिटिगेट, मिटिगेट, यू नो। मैं और एक लाइन बोलता हूँ आपको। एवर सिंस वी हैव रियलाइज्ड आवर पावर्स टू हार्नेस नेचर, वी हैव बीन डूइंग सो। तो ये भी एक लाइन है, ठाप सकते हो कहीं से भी। तो इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, इंट्रीगिंग। सॉल्व इज लाइक कॉम्बैट, कॉन्फ्रंट, टैकल। कोई भी जो यू नो सॉल्यूशंस वाले जो आते हैं, मतलब
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। वहाँ पे आप एक प्रिवेंटिव मेजर के बार बार तो आप नहीं ला सकते ना कि फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन। तो आप पहले डाल दो कॉम्बैट, फिर डाल दो कॉन्फ्रंट, उसके बाद डाल देना टैकल, नॉलेज, इनसाइट, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ठीक है। एंड फिर आता है आपका बस ज़्यादा नहीं है, 140 समथिंग है, 2 पेज रहेंगे, बोर मत होइए ज़्यादा। और एमिनिटीज़ आपको पता ही है, एमिनिटीज़ वो जो नए नए घर होते हैं उस पर होती है, ठीक है। इंस्टिल और इनकलकेट, टीचर बच्चे को करता है, मतलब इंस्टिल दिस नॉलेज, इनकलकेट दिस नॉलेज, और इम्बाइब इज समथिंग जो कि बच्चे टीचरों से लेते हैं, ठीक है। मतलब इंस्टिल और इनकलकेट टीचर देती है और इम्बाइब हम लेते हैं, ठीक है ना बॉस। तो ये सीन है। ईजी इज़ लाइक फसाइल, डिसबर्समेंट, हाँ, टू पे, ये बैंक वाले बोलते हैं, ठीक है। तो ये शायद यूज़ नहीं होने वाली डिसबर्समेंट, वैसे मैंने लिख दिया। एक्चुअली इसी बीच मैंने लोन का भी बात कर रहा था ना बैंक वालों से, तो वहीं से मेरे को मिला डिसबर्समेंट, तो मैंने घुसा दिया। ये नहीं लगने वाली हम लोगों को, वैसे तो अच्छी है अगर पढ़ लेते हो तो। ह्यूज इज़ लाइक नर्वस, पेरेंट्स, गार्जियंस, प्रोजिनेटर्स या प्रोगिनेटर्स, सॉरी सॉरी इफ़ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग। अब देख लेना, स्पेलिंग तो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, पता नहीं। हेल्प इज़ लाइक असिस्ट, एनेबल, फॉस्टर, फॉस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनकरेज और डेवलपमेंट, ठीक है। एंड देन कम्स मॉडर्न एडिफाइसेस, इरेशनल सोशियो इकोनॉमिक issues, and then futile step, yeah, the government has taken a futile step against this and all, ठीक है। फ्रेजाइल माइंडेड, जिनको कुछ नहीं पता, ठीक है, मतलब लैकिंग इन जजमेंट और गुड सेंस वगैरह नहीं है उनका, वो है। क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन वगैरह के चक्कर में जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो फ़ायदा है कि बुरा है, तो फ़ायदा है उस जगह पे हम लोग ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट। और ये जो है ना, एंड्स अप अडॉप्टिंग सीडियो कल्चरल आइडेंटिटी, ये इसी ऐसे से लिया गया है, बिकॉज ये जब कह रहे थे कि जो क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट है उनकी पहले मेरिट्स तो कह दी, जब डिमेरिट्स कह रहे थे वहाँ पे, मतलब जो बच्चे होते हैं वो एंड्स अप अडॉप्टिंग सीडो कल्चरल आइडेंटिटी, वो जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। फ्रेजाइल माइंडेड बोल दिया, हेनस क्राइम, कुछ भी हो भाई, हेनस, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक हो गया, पॉम्पस, पॉम्पस मतलब जो सब ज्ञानी है, मतलब सब जानने वाले, जो हमारे यहाँ पे बाबा होते हैं, वही है। और कन्फाइंड इज़ लाइक रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड टू वन प्लेस, लाइक since last 6 months we have been confined to our places because of quarantine, yeah. So play a sterling role, which is a very important role. Amalgamation is like combining or joining. Alarming trend, अरे बाप रे बाप, सबको पता है अलार्मिंग ट्रेंड क्या है। ये तो भाई अलार्मिंग कुछ भी हो, अलार्मिंग ट्रेंड है, मतलब, ठीक है। डिसेप्टिव एंड ल्यूक्रेटिव एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है कि एडवर्टाइजमेंट एंड ये सब चीज़ें बहुत ल्यूक्रेटिव एंड डिसेप्टिव है, तो उस जगह पे आप डाल सकते हो। डिसेप्टिव है, ल्यूक्रेटिव है, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत पैसे खर्चा कर रही है और मेकिंग दोज थिंग्स, ल्यूक्रेटिव एंड डिसेप्टिव, इल्यूजरी, ये सब चीज़ें डाल सकते हो। एम्बिगस इज लाइक नॉट क्लियर, विम्सिकल इज अनयूजुअल एंड डायर कॉन्सिक्वेंसेज, सॉरी, दैट इज टेरिबल, गवर्नमेंट डिसीजन could have dire consequences। डेली कम्यूटिंग, मतलब जो रोज़ का आना जाना। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंडिस्पेंसिबल रोल और पाइवोटल, ठीक है, PIVOTOL। एंड देन गेट, एक्वायर, मेरे को पता है ये ईजी है, लेकिन ये सब चीज़ें ही हमको लगती है, ठीक है, जब हम लोग ऐसा लिखते हैं। सो ओनली आप कहोगे इतनी ईजी वर्ड है यार, लेकिन हाँ, ओनली हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। सोनली डिपेंड्स ऑन, मियरली डिपेंड्स ऑन। रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते नहीं हर एक ऐसे में, तो वहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबल की जगह लायबल डाल दो, ठीक है, कि गवर्नमेंट लायबल है, गवर्नमेंट लायबल है, ठीक है। एक्टिविटीज़, परस्यूट, ये सब चीज़ें मैंने पहले बोल दी हैं। सपोर्ट, बॉल्स्टर, यूनाइट भी पहले की है। हिंडर, हैम्पर, फैसिलिटेट इज़ डेवलपमेंट, फॉर्ज इज़ टू फॉर्म। खुदा हाफिज़, बस दुआ में याद रखना।